Bismillahirrahmanirrahim. Student, again we are continuing our ISO standard 31000. Students, ISO 31000 is a standard for risk management. This standard provides guidance principles for effective risk management. As you know, risk is inherent in our daily life. We face risk. Organization also face some sort of risk which may affect their chances of success. So they need to account for unexpected risk. That's why this standard was developed by ISO. Last time we discussed the three elements of ISO. Principles are like objectives, framework are paths to achieve those objectives, and processes are the source of managing risk. Here is a relationship between these three elements. Principles guides the creation of the framework. They are directly linked to framework, and the framework has two-way link with process. Framework define the process, and it also gives feedback to the framework. Either their path is good to handle process risk management in the organizational processes, or they need to review, they need to update. Okay, all three elements are clearly displayed in this picture, very beautiful picture. The first part is based on principles. Here are 11 principles, very clear principles. After, we can see the framework, how risk management work, and after, how we will assess and how we will treat risk. So it comes to the first part, principles. Principles clearly describe the most important factor for an effective and efficient risk management. uh, they are giving some base for managing risk. There are total 11 principles we can see on the slide. Number one, create and protect values. Two, integral part of organizational processes. Risk management must be integrated into all business operations and activity. And then risk management should be a part of risk managing processes. It should address all uncertainties. The risk management approach should be structured, timely, and comprehensive. Risk management takes into account any limitation of available information. Processes and risk management framework should be customized, which is best organizational goals and context. We will follow those framework. Human and cultural factors are paramount. They should be considered at all stages of risk management. Be transparent in our policy, be dynamic and responsive to change, and be capable of continual improvement, enhancement of management framework through learning, through experience. Look at the framework. First, leadership and commitment, then design of framework, and then implementation of risk management approach, then monitoring, controlling a process, and after that updating, improvement of the framework. This framework is linked to risk assessment and risk treatment portion. We will further explain rest of the elements. Framework needs to be tailored to the organizational context. We must take into account the organizational internal and external environment, internal and external context. We must keep in our mind available resources, uh,
constraint of organization while making it framework. We must tailor framework. We must tailor a framework for every organization in its own context. ISO 31000 defines the risk management frame as a set of components that supports and sustain risk management throughout an organization. Major elements in framework are, you can see, leadership and commitment, then integration of all four processes. You can see in all four steps there is a design, there is implementation, also evaluation, and then improvement. There we can see integration of four process in framework. Each has its own importance. Let's start our third element of risk management process. Here we can see two important building blocks. One is risk assessment and second is risk treatment. Risk assessment breaks down into further three steps: risk identification, risk analysis, and risk evaluation. And risk treatment is simply the action taken in response to the risk identification, analyze and evaluation. हम जो रिस्क असेसमेंट करेंगे उसी के बेस पे हमें रिस्क की ट्रीटमेंट करनी है। आइदर हमें रिस्क का मुकाबला करना है, हमें अवॉइड करना है, हमें रिस्क का कुछ पोर्शन ट्रांसफर करना है, या हमने रिस्क के लिए रिस्क को बच के रास्ता तब्दील कर लेना है, स्ट्रैटेजी चेंज कर लेनी है। सो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस के एन मुताबिक ही अपनी प्रोसेसेस की ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का थर्ड एलिमेंट यहाँ पे एलैबोरेट किया जा रहा है। सबसे पहले आपको अपना कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज आपको अपने देखने हैं, रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, स्ट्रैटेजिक रिस्क देखा जाएगा, जरूरत पड़ने पे फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, मार्केट रिस्क को देखा जाएगा, उसके बाद लीगल इश्यूज, लीगल रिस्क कौन से मौजूद हैं उनको भी देखा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज के भी कुछ रिस्क होंगे, पॉलिटिकल सोशल इश्यूज हैं, ऑपरेशनल रिस्क हैं, टेक्निकल या इंफ्रास्ट्रक्चरल रिस्क होंगे, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर जो इंसान के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। इन सारे पहलुओं से हम रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, रिस्क की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि वो किस हद तक इंटेंसिटी से ऑर्गेनाइजेशन को मुतासिर कर सकता है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से। अब रिस्क की एवेल्युएशन होगी कि अब हमने रिस्क के साथ करना क्या है और रिस्क के साथ हमने इसकी कौन सी स्ट्रैटेजी को आगे लेके चलना है। रिस्क की ट्रीटमेंट करेंगे, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क को हम अपॉर्चुनिटी में टर्न कर सकते हैं, रिस्क का वो सोर्स ही ख़त्म कर दें, लाइक्लीहुड चेंज कर दें, होने को चेंज कर दें, या फिर प्रोसेसेस के कुछ सीक्वेंस को बदल के रिस्क को हम हैंडल कर लें, रिस्क को शेयर कर लें, ट्रांसफर कर लें। जी, अब हमने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग भी करनी है रिस्क प्रोसेसेस की, कि हम जिस फ्रेमवर्क, पॉलिसी और प्लान के मुताबिक चल रहे हैं क्या वो सूटेबल है। हमने इम्प्लीमेंटेशन की इफेक्टिवनेस को चेक करना है। कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन, आपको प्रोसेस के शुरू में और प्रोसेस के बाद में भी कम्युनिकेशन प्रोसेस की, कंसल्टेशन की बहुत ज़रूरत है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आपको किसी भी वक्त अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चीज़ अपडेट करनी है या किसी न्यू रिस्क की मौजूदगी को शेयर करना है, कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन ये बहुत अहम इस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का। What are the benefits of ISO 31000? Risk management provides a sound base for decision making. Decision making में रिस्क मैनेजमेंट
प्लानिंग प्रोसेस को बेहतर करता है, कंट्रोल सिस्टम को प्लानिंग के एंड मुताबिक इफेक्टिव बनाता है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में एक प्रोएक्टिव अप्रोच नज़र आती है जो ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस को, जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। रिस्क मैनेजमेंट की वजह से स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट बढ़ता है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रोसेसेस की वजह से, रिस्क की कम्युनिकेशन की वजह से स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप होता है। इट इम्प्रूव्स सक्सेस रेट इन ऑल बिजनेस ऑपरेशंस। क्योंकि आप अपने हर प्रोसेस में रिस्क मैनेजमेंट को देख रहे हैं और उस प्रोसेस के इफेक्टिव होने से ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, बेहतर होती है, एक रेजिलियंस नज़र आती है, एक सक्सेस रेट इंक्रीज होता नजर आता है। ISO 31000 के गाइडलाइंस को फॉलो करने से एक इंटेग्रिटी भी नज़र आती है। हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्वालिटी, बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच जो है वह नज़र आती है। चेंज को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करने की पावर डेवलप होती है जब कंपनीज रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस पे अमल करती हैं। रिस्क ट्रीटमेंट के लिए, रिस्क को कम करने के लिए आपने जो आपने स्टेप उठाना है उसके लिए चूंकि रिसोर्सेज ही की ज़रूरत पड़नी है, तो रिस्क मैनेजमेंट में आप अपने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को इफ़ेक्टिव करते हैं, बढ़ाते हैं और हद्दुल इम्कान कोशिश की जाती है कि ऐसी प्रिवेंटिव प्रोसेसेस लाई जाएं जो लॉस को होने से ही रोकें। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एक लर्निंग भी नज़र आती है, क्योंकि सक्सेस को बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार उसको दोहराया जाता है। उस सक्सेस को ऑर्गेनाइजेशन के का कल्चर बन जाने से आने वालों के लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग सोर्स भी डेवलप होता है, नॉलेज डेवलप होता है। ISO 31000 प्रिंसिपल बेस्ड एक स्टैंडर्ड है। हमने बहुत सारी डिस्कशन की इस पे। इस स्टैंडर्ड की जो गाइडलाइंस हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हद तक ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत सारे ISO के जो बहुत सारे स्टैंडर्ड रिवाइज हुए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को शामिल किया गया है। यानी आप क्वालिटी के स्टैंडर्ड को उठा लें, इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड को उठा लें, 45,000 स्टैंडर्ड को उठा लें, आप 22,000 स्टैंडर्ड फूड के बारे में है उसको उठा लें, उसमें रिस्क को, हैजर्ड्स को मिनिमाइज करने और अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को प्रोसेस का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को अडॉप्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदे में है। So organization must follow the guidelines of ISO 31000 risk management. आई होप कि आपको इस स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। ISO का ये स्टैंडर्ड जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने साइज, अपने बिजनेस नेचर, अपने प्रोसेसेस के मुताबिक इसको फॉलो करेगी। शुक्रिया।